یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اسرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کیسے ہیں رمضان بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی رمضان بھائی، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو جائے تیار کیونکہ ہم لائے ہیں آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام بچوں کی شام، اور ہمارے اس سلسلے میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس، اور ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سعد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سعد بھائی آج ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورۃ الکافرون۔ ماشاء جی اللہ، ماشاء اللہ، جی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ جی تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سے ہمارا سلسلہ مس ہو جائے یا کوئی بھی پارٹ مس ہو جائے تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، فیس بک کڈس مدنی چینل کو لائک کریں، اور تو اور سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں۔ جی نہال بھائی، مدنی چینل کے ناظرین آپ تیار ہو جائیں کیونکہ آج کا سوال میں پوچھنے والا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام مبارک کیا ہے؟ جی ہاں، میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام مبارک کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا آپ حسین بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں نہال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسین بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی نعت شریف سنانے والے ہیں؟ آج میں اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، بہت ہی پیارا کلام سنا۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے رمضان بھائی، جی شروع کیجیے آپ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے گئے میرے آقا نے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے میرے آقا نے دریا بہا دیے گئے در پہ بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاعری ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جیسا آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو جلدی جلدی بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین شروع میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام مبارک کیا ہے؟ جی آئیے اپنے پروگرام بچوں کی شام میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی کال پلے کیجیے۔ نام کو صحیح مانا ہے اس منڈی چینل ہمارا منڈی چینل جی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ اپنا ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ بچوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان بھائی۔ جی نیکسٹ کال۔ دور فاطمہ تاریہ ہے، میں پنجاب دیگا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو عربی الفاظ سناؤں گی۔ کتاب بیگ میں ہے، الکتاب فی المحفظۃ، ٹیچر کلاس میں ہے، الاستاذ فی الصف، میرے ابو گھر پر ہے، ابھی فی البیت۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمزہ بھائی انہوں نے کل کے عربی کے الفاظ سنا ہے، صحیح سنا ہے انہوں نے؟ جی انہوں نے بالکل درست سنے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ ہمیں عربی کے الفاظ بھی کالز کر کے سنا سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں بچپن سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنا متنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور
सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी हमजा भाई, आपके नाम का ही जी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमना है, मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश होकर देखती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। आप खुद भी देखें, दूसरों को भी दावत दें कि बच्चों की शाम प्रोग्राम आता है, आप जरूर देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा बहुत सारी अमेजिंग इंफॉर्मेशन सीखने का मौका मिलेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हमजा भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हमजा भाई, आज आप हमें कौन से अरबी के अल्फाज सुनाएंगे? जी, मैं आज आपको कुछ जानवर और परिंदों के नाम बताऊंगा कि इन्हें अरबी में क्या कहते हैं। जी जरूर सुना। जी आइए। जी बच्चों, हम ये जो पढ़ेंगे हम याद करेंगे और उसके बाद हम आपसे सुनेंगे भी, ठीक है? और नाजरीन भी देख रहे हैं, वो भी याद करें, उनसे भी हम सुनेंगे। जी ये देख रहे हो, आपको ये क्या लग रहा है? किसी को पता है क्या है? शुतुरमुर्ग है। जी अब देखते हैं हम इसको अरबी में क्या कहते हैं। जी दिखाइएगा, शुतुरमुर्ग को देखते हैं अरबी में क्या कहते हैं। जी नामतुन क्या कहते हैं? नामतुन। नामतुन क्या? नामतुन। नामतुन। शुतुरमुर्ग को अरबी में नामतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नामतुन। जी सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या कहते हैं? नामतुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये क्या है? चूहा। जी अब देखते हैं चूहे को अरबी में क्या कहते हैं। जी दिखाइएगा। फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फारुन। क्या कहते हैं? फारुन। जी फारुन कहते हैं। चूहे को क्या कहते हैं? फारुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। जी ये क्या लग रहा है आपको? जी चिड़िया को अरबी में कहते हैं उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन कहते हैं। जी पहली तस्वीर दिखाइएगा। शुतुरमुर्ग को अरबी में क्या कहते हैं? नामतुन। क्या कहते हैं? नामतुन। क्या कहते हैं? नामतुन। जी अगली तस्वीर। चूहे को अरबी में फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। चिड़िया को अरबी में क्या कहते हैं? उस्फूरुन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबकी आवाज आनी चाहिए। उस्फूरुन। जी पहली तस्वीर दिखाइएगा। शुतुरमुर्ग को अरबी में क्या कहते हैं? नामतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नामतुन। क्या कहते हैं? नामतुन। जी अगली तस्वीर। चूहे को अरबी में फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फारुन। जी अगली तस्वीर। चिड़िया को अरबी में उस्फूरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। जी उस्फूरुन कहते हैं। जी अगेन दिखाइएगा। शुतुरमुर्ग को अरबी में क्या कहते हैं? नामतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी अगली तस्वीर। माउस यानी चूहे को अरबी में क्या कहते हैं? फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फारुन। जी और अगली तस्वीर चिड़िया को अरबी में कहते हैं उस्फूरुन। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। जी हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए। सवाल था आपसे, जैसे कि आखिर में ताहा है, नामतुन है, तो जी। इसके ऊपर दो पेश तो नहीं है, फिर भी इसको तुन पढ़ेंगे। जी इसम है, इसम के आखिर में तनवीन आ जाती है। जी तो दोनों लफ्ज सही है इसम की अलामत। जी और उस्फूरुन में भी यही है। और फूरुन में भी ऐसे जी ही। जी बिल्कुल, आप पढ़ाइए, कंटिन्यू। जी पहली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं हम। शुतुरमुर्ग को अरबी में कहते हैं नामतुन। क्या कहते हैं? नामतुन। जी अगली तस्वीर। चूहे को अरबी में फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फारुन। जी और आखिरी तस्वीर। चिड़िया को अरबी में उस्फूरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्फूरुन। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम में आपके कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी कॉल प्ले कीजिए। मैं मेहताब पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। अब्बू घर पे हैं, अभी फिल बैती, उस्ताद क्लास में हैं, अल उस्ताजु फिल सफ़ी, किताब बैग में है, अल किताबु फिल महफज़ती। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी हमजा भाई, आप क्या कहेंगे? इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। जी इन्होंने भी कल वाले अल्फाज जुमले सुनाए और वो बिल्कुल दुरुस्त है।
जी माशाल्लाह अज़्ज़वजल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कनीस फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब बताएंगे। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा सईद है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू जान का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाल्लाह दो जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। जी मदनी मकसद बताएं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़रीन तारिया है, मैं जमजम नगर हैदराबाद से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत पसंद है। मैं रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आपके सवाल का जवाब ये है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है। जज़ाकल्लाह खैर। आपको हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी इसके देखने की दावत दीजिए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सलमा तारिया है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जज़ाकल्लाह खैर। जी रमजान। जी आपने सवाल का जवाब बताया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दो जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं ठट्ठा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जान भाई अगला सेगमेंट कौन सा है? जी हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम मकड़ी 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 चूंटे से वो आ टकरी। मकड़ी चूंटे से वो आ टकरी। चूंटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। मकड़ी चूंटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया, लड़ना अच्छी बात नहीं है, इसको रास्ता में दे दूं कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने यूं बोला, आई चूते आप ही निकले। चूंटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। मकड़ी 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 बच्चों की शाम। जी आपने देखा नज़म टाइम हमारा सेगमेंट। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट इम्तिहान आपकी अकल का, जिसमें हम हमारे हाज़रीन से सवालात करते हैं। पहला सवाल किससे पूछे रमजान भाई? तैयार है सब? तैयार हैं आप सब? रमजान भाई पहला सवाल किससे पूछना है? पहले आप सवाल कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत यानी बर्थडे कब आता है? आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत यानी बर्थडे कब आता है? कौन जवाब देगा? उनसे ले लेते हैं। आप जवाब देंगे? आपको नहीं पता? आपको पता है? जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को आता है। जी 12 रबीउल अव्वल का आता है। देख ले रमजान भाई।
जी इनका जवाब दुरुस्त है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हम आशिकाने इबादत मनाते हैं। जी जुलूस भी निकलता है। सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से ही लेना चाहिए। रमजान भाई भी सीधे हाथ से देंगे और सीधे हाथ से ही इनको तोहफा पेश करेंगे। अगला सवाल रमजान भाई आप पूछ लीजिएगा। लफ्ज सलाम में कितने नुक्ते हैं? लफ्ज सलाम में कितने नुक्ते हैं, ये गौर से देना है। सलाम में जो उर्दू में सलाम लिखा जाता है उसमें कितने नुक्ते हैं? कौन जवाब देगा? हुसैन भाई से ले लेते हैं, है तो इंटरेस्टिंग सवाल है। इनके पास माइक है। इनके पास माइक है। चल लफ्ज सलाम में नुक्ता होता ही नहीं है। नहीं होता? देख लें कहीं गलती ना हो जाए आपसे रमजान भाई, देख लें। नहीं इनसे गलती नहीं हुई है ये। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ये बताइए कि वाटर की स्पेलिंग क्या है? कौन जवाब देगा? इनसे ले लेते हैं। से ले लेते हैं, रमजान भाई ने बोला था। वाटर की स्पेलिंग WATER वाटर। दोबारा सुनाइएगा। WATER वाटर। देख लें गलती ना हो जाए आपसे। रमजान भाई तोहफा लाए, इनको इंशाल्लाह जल्द पेश करेंगे। देख ले, दोबारा सोच लें, सोच के जवाब दे दें, कोई मसला ठीक है। मैंने पूछा था कि वाटर की स्पेलिंग क्या है और इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ज़ोजल। मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ सवाल हुए और जवाब भी हुए। आइए अगला सवाल भी पूछते हैं। जी रमजान भाई अगला सवाल आप चॉइस करें कि आप चॉइस करेंगे इंशाल्लाह ज़ोजल के किससे लेना है। अगर हम 5 का टेबल 6 तक पढ़ें तो क्या जवाब आएगा? अगर हम 5 का टेबल 6 तक पढ़ें तो क्या जवाब आएगा? रमजान भाई आप चूज करें। देखते हैं, इनसे ले लेते हैं। अरबी वाले के देखते हैं मैथ कितना अच्छा है। चलें देख लेते हैं। आप जवाब दें। 30। देख लें दोबारा, आप काउंटिंग कर लें कि क्या 30 है। 30। तो किस हिसाब से क्या आपने लगाए? 5 6 30। 5 6 30। देख जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी रमजान भाई आपका क्या ख्याल है कि मदनी मकसद सुन लें? जी मदनी मकसद हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं और अपना नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शान। एक मर्तबा का जिक्र है। एक वीरान रास्ते पर एक ऊंट खड़ा था और उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। उसी रास्ते से एक चूहे का गुजर हुआ। उसने जब देखा कि एक ऊंट खड़ा है और उसके गले में रस्सी है और वो कहीं बंधी हुई भी नहीं, न जाने चूहे को क्या सूझी। चूहा बड़े फखर से आगे बढ़ा और ऊंट की रस्सी उठा ली। अब मंजर कुछ ऐसा था कि चूहा रस्सी अपने मुंह में थामे आगे आगे और ऊंट चूहे के पीछे पीछे। चूहे की चाल ढाल में बड़ा तकब्बुर था। चूहा दिल ही दिल में अपने इस कारनामे पर बहुत खुश था कि इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। देखा, इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। ऊंट समझ गया, छोटे से जानवर, तू किस कदर खुशफहमी का शिकार है। बस थोड़ी देर सब्र तो कर। चूहा और ऊंट एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी देखकर तो चूहा डर गया, चलते चलते रुक गया। ऊंट रुका और चूहे से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे रहबर, खैरियत, आप रुक गए? प्यारे मदनी मुन्नो, पता है फिर क्या हुआ? चूहा जो पहले तो बहुत तकब्बुर फखर से चल रहा था, अब नदी के बहते पानी और गहराई को देखकर तो उसकी हालत ही गैर हो गई। ऊंट ने हंसी छुपाते हुए कहा, डर क्यों गए हो? क्या बात है, आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत और जुर्रत से काम लो। चूहे ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली और बताया कि पानी बहुत गहरा है
मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मैं देखता हूँ पानी कितना गहरा है। फिर वो नदी के पानी के अंदर उतर गया और चूहे को बताया कि पानी कोई इतना गहरा भी नहीं, बस घुटनों घुटनों तक ही तो है। आप आए आगे ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं। ये सुनते ही चूहे की तो गोया जान ही निकल गई हो। बड़ी आजिज़ी और इनकसारी करते हुए चूहे ने कहा, पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। चूहा समझ चुका था कि वो जिस बात पर गुरूर और तकब्बुर कर रहा था या वो जिस खुशफहमी में था वो दुरुस्त न थी। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। कभी अपने आप से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अहमियत होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चूहे की ये हालत देखकर ऊंट ने चूहे को अपनी कोहान पर बिठा लिया और नदी पार करा दी। प्यारे मदनी मुन्नो, देखा जो दूसरों को हकीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम किसी को हकीर न जाने। तो प्यारे मदनी मुन्नो, आप नियत करते हैं ना कि आइंदा किसी को हकीर नहीं समझेंगे। बच्चों की शाम। अच्छा हमजा भाई, आपसे एक सवाल पूछना था। इस दिलचस्प कहानी के सेगमेंट में दो कैरेक्टर थे, जैसे कि चूहा था। चूहा को तो आपने बता दिया कि चूहे को आपने बताया था, क्या बताया था आपने? अरबी में फारून। फारून कहते हैं। फारून कहते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए ऊंट को क्या कहते हैं अरबी में? जी हमने एक क्लास में पढ़ा था कि ऊंट को अरबी में जमलुन कहते हैं। जमालुन कहते हैं। जमालुन ऊंट को कहते हैं और चूहे को फारून कहते हैं। जी जी बिल्कुल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपकी कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल पे कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर अतारी है। मैं जलालपुर जट्टा से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब हजरत अब्दुल्ला है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। ये रमजान भाई, जी आपने हमें सवाल का जवाब बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आगे में रोज जवाब आपको बताएंगे। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमाइमा बिनते इकराम है। मैं लियाकताबाद से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहिब का नाम हजरत अब्दुल्ला है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या फिर गलत है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सरजा है। मैं वेहाड़ी से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक प्यारी सी नात सुनना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुनना चाहते हैं? जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा सदीका है। मैं वाहकैन से बोल रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जवाब हम आखिर में बताएंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या फिर गलत है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अफजा है। मैं कन्नौज से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत अब्दुल्ला। जी आपने सवाल का जवाब बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आगे में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बिस्मा है। मैं शर्टपुर से बात कर रही हूँ। मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। आप सल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल कीजिए। रमजान भाई आप कुछ नारे लगवाने वाले हैं? जी नारे लगाएंगे सब मिलके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कैसे हैं आप शामिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शामिर भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगा स्टारफिश की शक्ल का लेटेस्ट एयरपोर्ट। अच्छा, बिल्कुल बताइए। प्यारे बच्चों, एयरपोर्ट वो जगह कहलाती है जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरप्लेन फ्लाइट्स फ्लाई करने और लैंड करती हैं। हमारी कंट्री यानी पाकिस्तान में ही मौजूद किसी और सिटी यानी शहर या प्रोविंस यानी सूबे से आने वाली एयरप्लेन की फ़्लाइट को डोमेस्टिक कहते हैं, जबकि आउट ऑफ द कंट्री से आने वाली एयरप्लेन की फ़्लाइट को इंटरनेशनल फ़्लाइट कहते हैं। आज हम आप बच्चों के लिए एक ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ लाए हैं जिसको दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाने वाली स्टारफिश की शेप में डिज़ाइन किया गया है। प्यारे बच्चों, असल में स्टारफिश फिश नहीं, क्योंकि फिश की बैकबोन होती है। स्टारफिश अपने यूनिक शेप और डिफरेंट कलर्स की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। इनमें से कुछ के 5 बड़े आर्म्स यानी 5 आर्म्स होते हैं, जबकि कुछ के 50 आर्म्स तक होते हैं। स्टारफिश मॉडल के इस यूनिक एयरपोर्ट का नाम बीजिंग डकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये चाइना में तामीर किया गया है। इस एयरपोर्ट को मज़ीद खूबसूरत और यूनिक बनाने के लिए इस पर मज़ीद काम भी जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट की डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में मौजूद दूसरे तमाम एयरपोर्ट से डिफरेंट है। यहाँ एयर फ्लाइट्स की लैंडिंग और फ्लाइंग के लिए 4 रनवेज बनाए गए हैं। इस एयरपोर्ट से एक साल में तकरीबन 72 मिलियन पैसेंजर्स फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जी निहाल भाई, ये थी आज की न्यूज़। जी बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। स्टारफिश की शक्ल में एक एयरपोर्ट तैयार किया गया है। जी जी। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, कॉल पे कीजिए। मेरा नाम अलीजा है, मैं पिसूर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी से लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह मदनी चैनल हमारा मदनी जी चैनल। रमजान भाई, जज़ाकल्लाह, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कुछ कॉल्स एक साथ चला दे। मेरा नाम जैनब है। आज के सवाल का जवाब है हजरत अब्दुल्ला। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम हुनैन है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब हजरत अब्दुल्ला है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम लाइका तारिया है, मैं जरावाला से बात कर रही हूँ। मुझे बच्चों के शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट। आपके आज के सवाल का जवाब हजरत अब्दुल्ला है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्रार अहमद है। मैं सुजावल से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं मदनी मकसद सुनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी एक आखिरी कॉल दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शान बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस सवाल का जवाब आता है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी रमजान भाई, कुछ नारे लगवाने वाले हैं आप? जी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए वाक़िया सुने। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो ज़फ़र भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज हमें कौन सा वाक़या सुनाएंगे? आज मैं आपको इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाऊंगा। जी सुनाए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिनको अल्लाह पाक ने बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं और आप इन 4 बड़े इमामों में से एक हैं जिनको मुसलमान नमाज, रोज़ा और दीनी मसाइल में फॉलो करते हैं, और वो हैं इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक का दर्ज दे रहे थे। एक बिच्छू यानी स्कॉर्पियन ने आप रहमतुल्लाह अलैह को 16 मरतबा डंक मारे, यानी 16 बार काटा।
प्यारे बच्चों कितनी बार? 16 बार। अब हमें बिच्छू नहीं बल्कि मच्छर या चूंटी भी अगर काट ले दर्द तो होता है। इमाम मालिक को जब बिच्छू ने 16 बार डंक मारा होगा तो आपको कितना दर्द हुआ होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह को इतना दर्द हुआ कि आपका चेहरा मुबारक पीला पड़ गया। मगर बच्चों आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर भी हदीस का दर्स कंटिन्यू रखा, रोका नहीं। जब दर्स खत्म हुआ और लोग चले गए तो एक शख्स ने कहा, आज मैंने आप में एक अजीब बात देखी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, और बिच्छू ने के डंक मारने वाली बात पूरी बताई और फिर फरमाया, मगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का अदब और रिस्पेक्ट करते हुए सब्र किया। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े स्कॉलर होने के साथ साथ अल्लाह पाक के वली भी थे और आप जो भी काम करते थे वो अल्लाह पाक के लिए करते थे। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों इस वाक़े से हमें ये सीखने मिला कि हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और दीगर इस्लामी बातों का अदब करना चाहिए, जैसे कुरान पाक, मस्जिद, मज़ार वगैरह। अल्लाह पाक हमें भी अच्छा बनाए, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह ताला आपको एक मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। जी तो मदनी चैनल नाज़रीन, आए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक पैगाम। बच्चों की शान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कुछ समझाने आया हूँ, कुछ बातें है ना। पास छोटे भाई जो होते हैं वो बड़े भाई का या बड़ी बहन का अदब नहीं करते और जो बड़े होते हैं बसा औकात जो है वो रोब जमाते हैं छोटे भाई पे, चलो ये काम कर लो। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो बड़े भाईजान हैं तो उनको दिल भी बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं। जो बड़ा होता है उसको कुर्बानी ज्यादा देनी होती है। जो भाईजान हैं या बाजी हैं उनको आपी भी कहते हैं, जो आपी हैं वो आप अपने छोटे बहन भाई को ख्याल रखें। अच्छा कभी ऐसा हो जाए कि बड़े भाईजान या बड़ी आपी आप पर रोब डालें, ये कर लो, यूं नहीं करना, क्यों मेरी चीज को हाथ लगाया। अब आप पे वो रोब जमा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर वो आप पे रोब डाल रहे हैं तो आप उनके रोब में आ जाएं, ये नहीं कि आप उनसे बदतमीजी शुरू कर देंगे। तो अगर वो रोब जमा रहे हैं तो उनके रोब में आ जाना चाहिए। और जो बड़े भाई हैं और जो बड़ी आपी हैं, जो बड़ी बाजी हैं, उनको जो बिला वजह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अगर अम्मी ने आपको एक काम दे दिया कि भाई ये काम आप इन छोटों से करवा लें, तो अब ये नहीं कि आप अम्मी बन गई, ठीक है, और आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, बस पिटाई भी कर देते हैं। तो भाई ये नहीं करें, प्यार और मोहब्बत से। आपका काम है समझा देना, आप बेटा यूं कर लें, मेरे भाई आप यूं काम कर लें, आप यूं कर लें। तो छोटे बड़ों को तंग नहीं करें और जो बड़े हैं वो छोटों को तंग ना करें। तो आज बच्चों की शाम में हमने ये सीखा कि हमने जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी आपी हैं, उनका नाम नहीं लेना, और जो बड़े हैं उन्होंने छोटे बच्चों पर, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, उन पर रोब नहीं जमाना। और बसा औकात यूं होता है कि घर में शोर शराबा कर देते छोटे बच्चे मिलकर, तो ये लड़ाई झगड़े करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप सगे बहन भाई होकर लड़ेंगे तो ये लड़ाई की आदत आप में आ जाएगी, फिर आप स्कूल में भी लड़ेंगे, फिर गली में भी लड़ेंगे, फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयां करेंगे। इसको याद कर लें, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो अगर आप लड़ाई करेंगे तो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तो आप सब नियत करें और इसी तरह मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। बच्चों की शान। जज़ाकल्लाहु खैरा आबिद बापू, अल्लाह ताला आपको बार बार मीठा मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। बड़ा ही अच्छा पैगाम भेजा था हमारे आबिद बापू ने। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह तो जी। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कुछ कॉल्स। मोहम्मद जाफर रजा तारी यशमा मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। आई
must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal. Kids Madni Channel, हमारा Madni Channel. जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। इस कहानी का सबक ये है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल है। माशाअल्लाह ज़ोजल रमजान भाई इन्होंने कहानी का दिलचस्प कहानी का सबक भी बताया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमला आजम अत्तारी है, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नहीं अल्लाह ज़ोजल थोड़ी देर बाद जवाब देंगे हम। जी नेक्स्ट कॉल। नाम आलिया फातिमा तारिया है, मैं कोटा राजस्थान हिंद से बात कर रही हूँ। आपके प्रोग्राम में जो सवाल किया गया है उसका जवाब है हजरत अब्दुल्ला, और मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी निहाल भाई सवाल का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त आ गया है सवाल का जवाब देने का। मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था कि बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू जान का नाम मुबारक क्या है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू जान का नाम मुबारक क्या है, और इसका जवाब है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिन जिन बच्चों ने हमें हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी रमजान भाई आप एक्स्ट्रा देंगे। जी चलें, इसके साथ साथ हमारे सेगमेंट्स खत्म हुए। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।